Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope and pray that you all are safe and fine. The subjects that we are studying is banking law and practice, and so far we have studied about different banking infrastructures, different departments of the bank. Currently, we were studying about how the banks operate and how the banks open the account of different individuals as well as the special accounts. For example, we had discussed about the account of an individual, the joint accounts, what happens when a customer bank goes bankrupt or insolvent or a person dies, and thereafter we were studying about the accounts of special customers like the companies, like the firms or partnership. So in continuation to it, we had ended the topic of accounts relating to companies. So we have discussed how account of a company is opened, what is the registration process, and we had also discussed that what happens if the company goes bankrupt and all those scenarios. So today we will be talking about a new thing, or the new account, and those accounts will be of clubs, societies and associations. So let's move on. So firstly we'll have to study what are these accounts, like what are clubs, societies and associations. So for understanding, let me tell you that these are non-trading organizations and formed for promotion of culture, science, education, recreational activities, charitable purposes, etc. So primarily their main purpose is not to earn profit. सो इनका पर्पस क्या है बनाने का? ये बनाने का पर्पस है कि एक स्पेसिफिक एरिया में या एक स्पेसिफिक जगह पे कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए ये बनाई जाती हैं, और जिनको बनाया जाता है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1866 के अकॉर्डिंगली. सो obviously they need to apply for the registration such as for clubs, societies and associations. So जिस भी कैटेगरी में वो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती हैं या फॉर्मेशन करवाना चाहती हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो एप्लीकेशंस पास ऑन करती हैं, एंड वंस दे फाउंड फिट दे आर ऑल्सो इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो ये मैंने आपको बता दिया कि ये रजिस्टर होती हैं सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1866 के, और जब ये मतलब जब ये अपनी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेती हैं, जो रिक्वायर्ड फीस है ये वो पूरी कर लेती हैं, तो इनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाता है, विच इज़ एक्चुअली द प्रूफ दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड एंड एस्टेब्लिश्ड. Then when these organizations are registered or established, they get incorporated. So obviously the next process is to run them, next process is to operate them, next process is to manage them. So the body, or we can say the persons, the group of people जो इसको एडमिनिस्टर करते हैं, चलाते हैं, मैनेज करते हैं, दे टेक्निकली आर कॉल्ड गवर्निंग बॉडी और मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव कमेटी. सो गवर्निंग बॉडी या मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी, दे आर द वंस हु आर एक्चुअली they are the ones who run this kind of bodies like clubs, associations or societies, and all these governing bodies or managing or executive committees, they actually run the business, or they actually run the processes as per the rules and regulations which are written, which are called bylaws of the organization. So जैसे कंपनी बनाते हुए उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मेमोरेंडम था या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन था, सिमिलरली जब ये क्लब सोसाइटीज़ बनती हैं तो इनके भी रूल्स रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, और उन रूल्स रेगुलेशंस को हम बायलॉज कहते हैं. सो ये जो मैनेजिंग कमेटी है या जो गवर्निंग बॉडी है, ये उन्हीं रूल्स के अंदर रह के, उन्हीं बायलॉज के अंदर रह के इन एसोसिएशंस को, सोसाइटीज़ को, क्लब्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को चलाती है. Now coming towards the opening of these accounts. So firstly we need a resolution authorizing opening of account.
And where do we get these authorization? It should be written in the bylaws, in the rules and regulations, that account of such organization like clubs, associations वगैरह ये account open करवा सकती हैं. और resolution जैसा कि आप जानते हैं, resolution is basically it's you can say कि एक तरीका कार है जिसके थ्रू किसी भी चीज़ को अप्रूव किया जाता है. जैसे एक तहरीक चलाना है, या सिमिलरली एक पेपर के ऊपर सबका अप्रूवल ले लेना, दैट वी आर गोइंग टू डू दिस वर्क, एंड इफ एवरीबडी और द स्टेक होल्डर या जो एज पर द लॉ अप्रूविंग अथॉरिटी है, जब वो उसको अलाउ कर देती है तो हम कहते हैं एक रेजोल्यूशन पास हो गया. There are two kinds of resolutions. The one is normal, ordinary resolution, and the special resolution. Ordinary या normal resolution वो होता है जिसमें 50% majority चाहिए, 50% and above. So अगर 50% से slightly ज़्यादा एक specific चीज़ की तरफ agree कर जाती है, so that means it's a normal और ordinary resolution. और अगर उस resolution को pass करने के लिए 2/3 majority चाहिए, अगर इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 75% मेजॉरिटी चाहिए, दैट इज 3/4 मेजॉरिटी. सो ऐसी सिचुएशन को हम, या ऐसे रेजोल्यूशन को हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं. सो फॉर ओपनिंग द अकाउंट ऑफ क्लब्स, एसोसिएशन एंड सोसाइटीज विच वी आर टॉकिंग अबाउट, the resolution of the governing body or managing committee authorizing the opening of account with the bank is mandatory. So the resolution should name the persons authorized to operate the account. So that simply means there can be a lot of people in this in clubs or societies, but जो बैंक अकाउंट ओपन करने का इख्तियार रखते हैं उनका नाम इस रेजोल्यूशन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, along with their powers. Along with their powers, that simply means कि वो सिर्फ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, या विड्रॉ भी कर सकते हैं, या एडवांस भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं बैंक से. सो इन तमाम सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली जो पावर्स दी जा रही हैं उन लोगों को, दैट शुड बी रिटन in that resolution. And once that resolution is signed by the authority or it is approved, it should be countersigned by the secretary of the governing body. So एक authority sign करेगी जिसने resolution को approve करना है, और उसको counter sign करेंगे उसी organization के या उसी body के जो secretary है, so that के वो confirmation हो जाए, और in all the and it all becomes the more safer and secure. Then a certified copy of those bylaws and rules and regulations showing limitations of governing body should also be sent, or should also be provided, or should also be taken by the banker. So certified copy का मतलब ये है ओरिजिनल्स, और उसको फोटोकॉपी करवा के उसको अटेस्ट किया जाए. So that means कि जो सर्टिफिकेशन का मतलब ये है, जो ओरिजिनल रूल्स हैं वो तो नहीं है, बट उसके जो कॉपीज दी जा रही हैं इट इज़ द सेम एज ऑफ द ओरिजिनल. सो उनको दोबारा से अटेस्ट किया जाए, सर्टिफाइड किया जाए. सो दैट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ दोज बायलॉज मैं आपको बता चुका हूँ, वो तमाम रूल्स रेगुलेशंस जो उस इंस्टीट्यूशन के हैं या जिनको गवर्निंग बॉडी उसके मुताबिक अपनी ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी. सो सर्टिफाइड कॉपी उन तमाम बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस की वो बैंकर को दी जाएगी. देन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, it should be duly signed by the authorized persons who would operate the account. So simply जिनको पहले रेजोल्यूशन में अलाउ किया गया था कौन बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर उन सब के साइन होना जो अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, दैट इज मैंडेटरी. Then it is mandatory to, or it is safer, or it is advisable to get an indemnity from those institutions, from all the stakeholders, from all those authorized persons. ऐसी indemnity ले लेना कि जिसमें अगर कोई भी बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस या उस इंस्टीट्यूशन में चेंज आए तो उनको बाइंड किया जाए कि वो चेंज बैंक को इन्फॉर्म किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जो सर्टिफाइड कॉपी बैंक में जमा करवाई गई थी, बाद में वो बॉडी उस रूल को चेंज कर देती है, सो एक इंडेमनिटी ले ली जाए कि अगर किसी भी रूल को चेंज किया गया तो वो इमीडिएटली बैंक को बताना ज़रूरी होगा. सो अगर वो इंडेमनिटी ले ली जाती है, सो दैट मीन्स द बैंक इज सिक्योर. वंस अगर कोई फ्रॉड हो जाता है या कोई केस कोर्ट में चला जाता है, द बैंक कैन प्लेस दैट इंडेमनिटी इन फ्रंट
और कह सकता है कि इन्होंने कंफर्म किया था या इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि कोई भी चेंज रूल रेगुलेशन में बैंक को इन्फॉर्म किया जाएगा, एंड बिकॉज दैट इज़, अगर वो नहीं बताते और बिकॉज दैट रूल और दैट चेंज ऑफ रूल इज़ नॉट इन्फॉर्म टू द बैंक, सो अब बैंक उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सो इन दिस सिनेरियो एन अंडरटेकिंग साइंड बाय ऑल द ऑथराइज्ड पर्सन्स on behalf of the institution expressly mentioning that as and when there is any change take place in the persons authorized to operate on the account, the bank will be informed immediately. मतलब ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि पहली दफ़ा रेजोल्यूशन में जिन बंदों को अकाउंट ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज किया गया था, बाद में उनको चेंज कर दिया गया या बाद में उनको उसकी पावर ले ली गई. So, ऐसी सूरत में बैंक को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, इसकी इंडेमनिटी ले लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो बैंक उस इंडेमनिटी को दिखा सके और प्रूव कर सके कि ऐसा कोई भी चेंज जो कि कमिट किया गया था कि हमें बताया जाएगा लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बताया. सो ऐसे सिनेरियो में बैंक विल रिमेन सेफ. Now coming towards the operations of the accounts. Firstly, I have told you about the opening of the account and now the operations of the account. So, in practically speaking, normally these institutions are unregistered and do not have contracting powers. So, if it is unregistered, that means they cannot do a contract, and if they are not able to do a contract, that means they cannot sign any document. So that means we should be careful that all these accounts, before opening those accounts, we should be careful that these clubs, societies and associations, they are registered, because any unregistered organization like club, association or society, they cannot enter into a contract. So if they are for example, if they are doing any dealings with the bank, or वो किसी भी किस्म की बैंक के साथ डीलिंग्स कर रहे हैं और उसके बाद कोई कोर्ट में केस चला जाता है एंड दे आर अनरजिस्टर्ड, सो बैंक कैन नॉट प्ली और बैंक कैन नॉट टेक अप द मैटर बिकॉज इट इज़ अनरजिस्टर्ड. वो तो पहले ही लॉ में लिखा था कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो आप बैंक ने अगर उनको लोन दे दिया है, एडवांस दे दिया है, सो दैट मीन्स इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द बैंक. सो बैंक शुड बी केयरफुल दैट दीज while dealing with those accounts, while dealing with clubs, societies and associations, they should take care of it that all these institutions are registered so that they can have contracting powers. Then secondly, if they are registered, so that remember, if it is unregistered, it does not have a legal entity, it cannot enter into a contract, and similarly ना तो वो किसी को सू कर सकते हैं, ना वो सू उन पे किया जा सकता है. सो दे कैन नेवर बी सूड, नीदर कैन दे सू. तो ना उन पे मुकदमा हो सकता है, ना वो किसी पे मुकदमा कर सकते हैं. सो ऐसे सिनेरियो में अगेन द बैंकर शुड मेक श्योर दैट इट इज़ रजिस्टर्ड, नंबर वन. देन वंस इट इज़ रजिस्टर्ड, देन दे विल बी हैविंग अ सर्टन कैपेसिटी. फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर है या बॉडी का कोई पार्ट है या कोई फाइनेंस मैनेजर है या जो भी उसको रोल दिया गया है. सो वंस इट इज़ रजिस्टर्ड, देन दे बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डीलिंग इफ दे साइन एनी चेक इन देयर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी. सो दैट मीन्स वो किसी इदारे को, क्लब को, एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ रजिस्टर्ड, इट हैज़ अ लीगल एंटिटी. सो जब अपनी उस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में किसी डॉक्यूमेंट को वो साइन करेंगे, देन दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज एंड बैंक विल बी सेफ. बट अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, सो इसका मतलब है उसकी लीगल एंटिटी नहीं है, और वो कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में नहीं होगा, बल्कि वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में होगा, जबकि अकाउंट हम ऑपरेट कर रहे हैं क्लब सोसाइटीज़ का. सो इन दिस सिनेरियो, वंस इट शुड बी रजिस्टर्ड, नंबर वन. देन दे शुड बी सम ऑथराइज्ड पर्सन बाय द गवर्निंग बॉडी. एक रेजोल्यूशन होना चाहिए उसके लिए. फिर उन रेजोल्यूशंस के तहत जिनको ऑथराइज किया गया है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उनसे साइन होने चाहिए. और जब बैंक से डीलिंग करेंगे तो वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बैंक के साथ डीलिंग करेंगे, यानी कि कोई भी चेक देते हैं तो वो साइन जो होगा वो उस ऑफिशियल कैपेसिटी का होगा, पर्सनल साइन या चेक जो है वो नहीं होगा. एंड ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओनली रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस आर लीगल एंटिटीज एंड आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि इट शुड बी रजिस्टर्ड
and only registered institutions, registered clubs, societies and associations, they are legal and valid entities and they are able to enter into a contract, and that is how they can with the bank. और फिर उनको किसी लीगल कैपेसिटी में सू भी किया जा सकता है. अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उनको सू नहीं किया जा सकता. सो दैट मीन बैंक जो है उसने कहीं ना कहीं मिस्टेक की एंड इट विल बी द लॉस टू द बैंक. सो banker should remain safe. It should clarify and it should verify that it is registered, and then all rules and regulations should be followed. In this lecture we have studied about the account of clubs, societies and associations, that what are the clubs and societies. I have told you that these are specifically formed for the promotion of culture, science, education, recreational activities, etc. It is governed by a body which is called managing or executive committee or the governing body. Then how the account is opened and how the account is operated of these special accounts. So I hope that you would have understand all these things. In the next lecture we will be discussing about the agent's account, how it is opened and how it actually operates. Till then, stay safe. Jazakallah.